Good morning, Narendra ji. Good morning, sir. Good morning. Wish you warm welcome to our digital meeting. I am very happy to share that with me, Mr. Narendra Ji Dongre, with us, and he is an additional executive engineer with Mahajan Co, and he has enrolled in May 2020 into investor category. Or our objective is to learn and discuss from him how he is benefited as an investor and how is helping his friend, family, colleague to become a better investor. So Narendra ji, you can start with your introduction and we'll take it forward for another 15-20 minutes. Yes, Narendra ji. Yes. Yes, sir. Good morning, sir, and thank you very much for this interview. I'd like to introduce myself, Narendra Dongre, additional executive engineer, presently working in Mahajan Co. I have completed my graduation in civil engineering in 1999 from Government Engineering College, Karad, district Satara, which is in Maharashtra. I worked in private sector later on and preparing for government job at that time, and I got job in a government sector like a central government in Andaman Harbour Works. So I was there since 2005 to 2007. Later on, I resigned from that service, and then I got job at Mahajan Co, where I am presently working. So I joined as junior engineer in 2007, and then through external notification, I qualified the exam of deputy executive engineer. And later on, I got promotion in 2017, and now I am additional executive engineer. Presently, I am working at Chhattisgarh in a big project, coal mine project. So this is from my end, sir. This is my introduction, little introduction. Yes, yes. I think that your introduction will inspire a lot of investor to learn the personal finance or prepare their own comprehensive financial plan. So I would like to know from you, what was the motivation to do a CFP certification? Because when you contacted me and I shared the set of link, but what was the inspiration, motivation to learn personal finance? The word CFP itself greatly impressed me. CFP, what is CFP? That was affixed to the name of Mr. Rajendra Thul sir. He is now CFP. CFP. He has completed CFP. He is retired superintending engineer from Mahajan Co. I regularly was seeing his name with suffix of CFP. So I talked to him what is CFP, and I was in search of financial education, financial literacy, because technical education I have, and I was illiterate about finance, financial planning. So मैं देख रहा था कि उनके नाम के सामने CFP लगा है, तो सर से बात किया, फिर सर ने बताया कि CFP मीन्स सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और मेरे कोच है मिस्टर केयूर शाह सर, तो आप कुछ वीडियोस देखिए, कुछ लिंक भेजे, कुछ यूट्यूब वीडियोस भेजे, और उन्होंने वो भी बताया कि डॉक्टर अपना मिस्टर राजेंद्र फुले सर, जितेंद्र फुले सर, सॉरी, मिस्टर जितेंद्र सर ने भी किया है, तो उनसे इंस्पायर होके फुल सर ने किया है, तो उनके भी वीडियोस देखिए, और आप यूट्यूब का 2-4 लिंक भेजे, मुझे वीडियोस भेजे अच्छे अच्छे, तो मैं बहुत इम्प्रेस हो गया. My aim was to join CFP course for planning systematically of my family finance and can be utilized as second career option. So I was very happy with CFP. This is good, very about good. CFP certification and my knowing. Good, very good. So आपके पास नरेंद्र जी 2 ऑप्शन थे कि आप CFP सेल्फ स्टडी में कर सकते थे. ओके, तो क्यों आपने सेल्फ स्टडी नहीं करके आपने कोचिंग ज्वाइन किया केयूर शाह के साथ? सर सेल्फ स्टडी करता तो मैं शायद कोर्स बीच में छोड़ देता या कंप्लीट नहीं कर पाता, और कोच की इसलिए जरूरत है कि CFP कोर्स करने में जितना टाइम लगेगा, कोच की वजह से मुझे बहुत कम टाइम मिलेगा और प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, प्रॉपर लाइन लेंथ मिलेगा, उसमें कम समय में मैं ज्यादा अचीव कर पाऊंगा और भी अच्छा कर पाऊंगा. शायद मैं सेल्फ स्टडी में इतना स्कोर नहीं कर पाता, और मैं 2 या 3 साल भी लग जाते मुझे ये कोर्स करने. सर जितना अभी सीखा हूँ ये शायद मैं 1 साल लगता मुझे जितना अभी सीखा हूँ इतना सीखने में, ये तो मैं सिर्फ 2 महीने में सीखा हूँ.
तो मुझे सर अच्छे स्कोर से सिर्फ एग्जाम नहीं तो मुझे प्रैक्टिकल ओरिएंटेड लर्निंग करना था। और आई जॉइन दिस course because this course has the intellectual coach Mr. Kevsha sir, and he has versatile knowledge. So I joined after watching various videos, success stories of various CFP successful candidates, and Mr. Jitendra Pule sir, and got impressed with discussion between Mr. Kevsha sir and Jitendra Pule sir. So मैंने सोचा कि मुझे कोच की बहुत ज्यादा जरूरत है सर, और आप जैसा कोच मिले, केरशा सर जैसा कोच मिले, तो ये भाग्य की बात है सर। गुड, वेरी गुड। एंड अगेन सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो हमारे प्रैक्टिशनर्स है जिन्होंने मेरे साथ पहले सीएफपी सर्टिफिकेशन किया, राजेंद्र सबसे पहले जितेंद्र जी फूले, उसके बाद उन्होंने रिकमेंड किया राजेंद्र थूल जी को, उसके बाद राजेंद्र थूल जी ने रिकमेंड किया नरेंद्र जी को, और आज की डेट में हमारा जो कॉन्सेप्ट चल रहा है इस हिसाब से राजेंद्र जी थूल और जितेंद्र फूले दोनों नरेंद्र जी के को-मेंटर भी है। तो इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं दी पर्सन हु इज रिफरिंग इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर, एक सीएपी जिसने मेरे साथ कंप्लीट कर लिया, उसने रिफर किया, इसका मतलब कि उसने रिफर करके छोड़ दिया नहीं है, बट आई हैव क्रिएटेड दैट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट वेयर द पर्सन हु इज रिफरिंग, first the person who is referring is my student only. He has completed with me in past maybe before 3 years, before 5 years, or before 1 year, and same time he takes the some responsibility of a new student whom he has referred. तो कहीं ना कहीं जो नया व्यक्ति आता है तो उनको भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि यस, कि ये ऐसा नहीं है कि अभी केयू सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं जितेंद्र फूले जी को पूछ नहीं सकता, थूल सर को कुछ नहीं पूछ सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं आज की डेट में नरेंद्र जी को सपोर्ट करने के लिए करीबन 4 मेंबर है, जिसमें राजेंद्र थूल है, अभय रोहम करके फ्रेशर्स भी है को-मेंटर, जितेंद्र फूल सेकंड लेवल पे है, केयू शाह सेकंड लेवल पे है। तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है, और कहीं पे फंस जाते हैं लर्निंग जर्नी में, क्योंकि जब हम डिजिटल मोड में लर्निंग करते हैं तो हो सकता है कि काफी सारी क्वेरीज हो सकती है और होती है, एंड वी एक्सपेक्ट कि आप वो क्वेरी सॉल्व करने के लिए हमें कांटेक्ट करें फोन से, मोबाइल से, या थ्रू व्हाट्सएप, एंड वी सॉल्व द क्वेरी। सो अभी हम आते हैं कि यहाँ पे कि यू हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट 3 month period, और यू कैन से प्रैक्टिकली 2 month period। तो क्या क्या आपकी की लर्निंग हुई, और वो की लर्निंग से आपके पर्सनल लाइफ में क्या क्या बेनिफिट हुआ? मैं सबसे पहले इन्वेस्टमेंट के प्लानिंग जो थे, ट्रेडिशनल प्लानिंग, ट्रेडिशनल वेज थे मेरे, ट्रेडिशनल वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो चेंज करके मैं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में आया, और एनहांस फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। तो मैं समझा कि वो लोन का बर्डन जो है, डेट बर्डन होता है, डेट ट्रैप में हम लोग फंस जाते हैं, उससे कैसे बाहर निकलना है। हम लोग को ईएमआई कम करना है, टेनर कम करना है। सबसे पहले तो हम लोग सेविंग और लोन ये दोनों एक साथ नहीं कर सकते, तो सेविंग ज्यादा से ज्यादा हम लोग एफडी आरडी जो है वो कम करके हम लोग वो सब डाइवर्ट इधर लोन में करना चाहिए। और लोन डेट है, वो लोन डेट पहले कम करना चाहिए, हम लोग डेट जीना चाहिए। डेट फ्री होने के बाद में हम लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हम लोग पैरेलल करते हैं तो हम लोग डेट ट्रैप में फंसे जाते हैं। और लोन लेकर, दूसरी बात सर, लोन लेकर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। और तो अभी जो इन्फ्लेशन है, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, और सर 2 इन्फ्लेशन, जैसे हम लोग इकोनॉमिक इन्फ्लेशन तो देखते हैं, हम लोग दूसरा इन्फ्लेशन जो हम लोग कंट्रोल कर चुके हैं, जिसको लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन बोलते हैं, वो समय के साथ बढ़ता है, वो हिडन रहता है, लेकिन वो इन्फ्लेशन को हम लोग कंट्रोल करके हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ा पाए। गुड, वेरी गुड। So I entered in new financial world with Kevsha Shah sir. Very good, thank you very much. So आप डेट प्लानिंग की बात कर रहे थे, तो हाउ स्ट्रक्चर्ड डेट प्लानिंग हेल्प यू टू अचीव दी और प्लान एंड अचीव दी डेट फ्रीडम? तो आप बताएंगे थोड़ा उसको डिटेल में कि आपने अपना डेट प्लानिंग को रीस्ट्रक्चर कैसे किया, आपके लोन्स को? हाँ, मेरा लोन एसबीआई का लोन था, तो मेरा प्रीवियसली रेट ऑफ इंटरेस्ट था 8.25। ओके। फिर मैं बैंक कांटेक्ट किया एमसीएलआर में कन्वर्ट करने के लिए, उसको एमसीएलआर से एमसीएलआर में कन्वर्ट किया। वेरी गुड। दैट रिड्यूस्ड टू 6.95
and my EMI was 27,330. So that reduced to 24,000, and my tenure was 173 months. That reduced to 170 months. And one of my relatives, his loan is 14 lakhs today, approximately 14 lakhs. So he has 9.1% loan interest. Rate of interest is 9.1%. So I suggested him to shift your loan, write me to MCLR and change your bank where you are getting rate of interest 6.95. तो उनका EMI 1400 रुपए 1400 रुपए बच गया. तो लॉन्ग टर्म में मैं कैलकुलेशन करने के बाद में मुझे कंपाउंडिंग के साथ में कैलकुलेशन के बाद में इफेक्टिव जो उसका सेविंग आता है लॉन्ग टर्म, मतलब जहां तक उनका लोन है 14 साल का पीरियड, वहां तक मैंने SIP करने बोला. वो जो डिफरेंस अमाउंट है, EMI कम हो गया उनका, तो 1400 रुपए का डिफरेंस आया, तो वो 1400 रुपए का SIP करने लगाया. तो SIP और ये हमारा लोन सेविंग, टोटल अमाउंट का सेविंग, ये लगभग 17 लाख जा रहा है सर उनका. वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन. कंपाउंडिंग पकड़ के टोटल SIP का 6 लाख आएगा और 12 लाख समथिंग उनका सेविंग लोन में आएगा. तो ये कंपाउंडिंग में हमारा ये फैक्टर कंपाउंडिंग जो 8th वंडर है, इसका इफेक्ट होता है. तो इसमें हम लोग लॉन्ग टर्म में 17 लाख वो सेव कर पा रहे हैं इन लाइफ ऑफ ईयर. गुड. तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है सर. एक्सीलेंट, एक्सीलेंट. तो मैं यहीं पे मैं समराइज करना चाहूंगा कि नरेंद्र जी ने अपनी लोन को रिस्ट्रक्चर किया. उनको जब उन्होंने डेट प्लानिंग की ट्रेनिंग अटेंड की एज अ पार्ट ऑफ CAP सर्टिफिकेशन कोचिंग, ही रियलाइज के ही कैन टॉक टू अ बैंक एंड रिड्यूस हिज इंटरेस्ट रेट. ओके, एंड ही हैज reduced effectively by almost 1.5%, and which helped him to reduce the average 3,000 per month interest rate, or you can say EMI. So almost 36,000 savings per month. Now you imagine that if loan is pending outstanding for 10-12 years, तो करीबन you have a present value of savings. और नरेंद्र जी ने बहुत अच्छा बताया कि if I use this 3,000 rupees and invest into a mutual fund SIP, and if I expect the approximately 10% return also, so down the line when my loan completes, it would be a 10 lakh plus rupees amount. So effectively I have 10 lakh plus, yes sir, 10 lakh rupees plus through proper debt restructuring. Yes. Good. I have calculated, and I started my SIP also. Very good, excellent. The difference amount has been deposited in SIP. And one more thing sir, वो मेरा जो इंश्योरेंस था वो ट्रेडिशनल इंश्योरेंस बंद किया, मैं टर्म प्लान शुरू किया. वेरी गुड, सुपर. तो मैसेज यही है कि यहाँ पे नरेंद्र जी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि he is working into a PSU organization, into a senior position, additional executive engineer. Okay, now he is into 40 plus. So when he retires, by that time, if today he has created his own personal financial plan with his own education, okay, there are two options of education. Either you hire a certified financial planner, okay, and pay the fixed fee to construct the comprehensive financial plan, okay, or second way is that you do it yourself. So you basically attend some personal finance coaching training, like as he has decided, Narendra ji, to go with Kayusha and do it yourself, where you basically learn the finance, and which is a far better option, because when you learn, you have a conviction why you should become a debt free, why you should plan for your retirement, why you should plan reduce your monthly expenses and reduce your lifestyle expenses, which is a better option. So individual can choose as per. So by the time he'll retire, he would be having a sufficient corpus to take care of the post-retirement expenses, because today, including his job, okay, PSU will not going to fund the post-retirement expense like guaranteed pension. And today, 99 out of 100 people, young people in age of 30 to 40 or 50, they have to plan their own retirement. And same time, when I learn personal finance, it may help me to take it forward, either after completing CAP certification, part-time profession also, where I can help my friend, colleague, relative, and
earn also fixed fee of constructing the financial plan, as well as it gives me a sometime positive message where I am helping someone. I am spreading the financial education, where Puleji spread financial literacy to Rajendra School sir, and then he spread to you. So we can spread the financial education and help the family to become a financial independence, because end of the day we are living in a country where we know that even post pandemic, the central government or state government doesn't have any penny for the middle class and above middle class people. They are devising the scheme for the poor people. Okay, but what about the middle class people? They are left on their own income. So middle class, upper middle class people are always charged higher taxation. Okay, direct or indirect taxes. Government has an expectation that you are middle class, upper middle class people, so take care of yourself. You don't come to even hospital. In government hospital, you go to a private hospital because you must have mediclaim. Even if you don't have a mediclaim, then you pay yourself. So objective is that if you are a middle class and upper middle class family, then you have to plan your finance in a such a way that in good situation or bad situation, you will be able to take care of your family. Okay, गुड, वेरी गुड. सो आई एम वेरी हैप्पी नरेंद्र जी, आपने 2 महीने में इतना अच्छा फाइनेंशियल एजुकेशन दिया जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस आया और आपने अपना डेट रिस्ट्रक्चरिंग करके एक प्लान किया डेट फ्रीडम अचीव करने के लिए. आपने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी स्टार्ट कर दिया है. तो मैं जान सर भी इमोशनल से मैं लॉजिकल की तरफ टर्न हो गया. वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट. तो अभी आप एक लाइव रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं, तो क्या आपका एक जेन्युइन फीडबैक है अबाउट आवर live recorded video lectures and overall support of co-mentor and mentor? Sir, this is a fantastic experience of my life of having live recorded video lectures. Classroom lectures and live recorded videos are two different phenomena. So in my live record in classroom, my coach is with me only for 8 hours, but in live recorded video, my coach is 24/7 with me. Yes, yes. So I can rewind my video. I can recheck my point if I left somewhere. I rewind it, and again I check it, study it, and go further. So I can study with live recorded video at any time in 24 hours with my handling with my official works, personal works, and then in spare time I study. So because of live recording video, I learn a lot. It has double benefit. If not understood any point, we can clear from Keir sir via mobile. So live recorded video learning process is easier because whenever I go, I carry my coach with me, and my co-mentors and mentors are very helpful. All my co-mentors and mentors are ever ready to assist me in my studies. They follow my studies also. So this is very good point. Rather they follow my studies and my achievements and help me to prepare my handouts also. The study is like teamwork, sir. I enjoy my study with my co-mentors and mentors. So this is very good part. That somewhere if I कहीं मैं अगर लटक गया, कुछ नहीं समझा, तो को-मेंटर्स को नहीं होंगे तो मेंटर्स है, कि नहीं कोई है तो फिर केयर शाह सर है. तो किसी को भी फोन कर सकता हूँ, ये फ्रीडम है और कभी भी मुझे हेल्प मिलता है सर. और ये मैं बहुत बार कर चुका हूँ, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है पढ़ाई में और पढ़ने में. गुड, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच. तो मैसेज वही है कि वी आर लिविंग इन डिजिटल वर्ल्ड. ओके, एंड आफ्टर पोस्ट कोविड classroom lectures may be difficult to conduct because of the social distancing and the other reasons. So live record lectures is the classroom lectures live recorded and shared to the registered participant, given the rights to watch for a particular period. It's like with KU Shah 4-month period is given to complete the 45 DVDs, which is a 150 hours of live record lectures, which take approximately 300 hours to complete. And wherever queries are there, there is a team micro group is created and team is ready to help you on a time bound manner. And again, we expect from participant to do a lot of practical applications. So when you do a practical application for yourself and for your friend relative, you get more
basically retention of subject as well as confidence also on a higher side. Okay, so now let me ask you a question. Okay, we have just started the Yes, sir. journey out of 15-month journey. Right now, CFP certification and new syllabus is 15-month journey. As per my thought process, we have just completed, you can say 20% only. Okay, so now, do you find Yes, sir. value for money for your coaching fee? Yes or no, in genuine way? Pardon, sir? Please repeat. हाँ. मैं रिपीट करता हूँ कि सीएफपी जर्नी जो है अभी नए सिलेबस में करीबन 15 मंथ की है. ओके, बिकॉज न्यू सिलेबस Yeah. will require more number of time. Okay, so earlier it was 12 months. Now, as per my process, any professional join with me, I expect 20 hours per week time investment, every 3 hours per day, and 15 months will take ideal to complete the CFP certification journey. Okay, and for that I charge only Okay. 29,000 rupees as a coaching fee. तो आपको 2 महीने के बाद आपको लग रहा है कि आपकी जो कोचिंग फी है वो आपको वैल्यू फॉर मनी दे रही है? Sir, definitely. Till date, I have saved my 2 lakhs rupees from my savings. So I just paid 40,000 third installment recently. So 60,000 and paying just 20,000 per month. I am achieving very much. In fact, I have planned very different goals, and in future I have to open company. In fact, my wife is opening a company, and I am helping as a financial planner. So I earn a lot, and this is my investment. This is minimum investment. 20,000 is my. This is minimum investment in this course, and achieved more than my expectations. Good. Thank you very much. So message is very simple, very loud and clear. कि when you hire a qualitative coach, high quality coaching, okay, so definitely fee would be on average 2x or 3x, with keeping in mind that that coach has to deliver 10x value. So that's how he has created the content of video lectures, study material. They created a team of support to provide the qualitative support to the member, and even there would be post CFP association. Today I have a thought that anyone who joins with me, if he is willing to continue the post CFP association, we have a thought process of Coach Blue Ocean team, where we have thought of CFP practitioner group. So it is not limited that you are connected for a few months, 1 year or 15 months to complete the CFP, but I expect that there would be a lifelong relationship, and I can help you even post CFP also. Yes, achieve the better practitioner. Okay, and it would be a win-win relationships. Okay, तो नरेंद्र जी, क्या आपके थॉट्स है? आप जो अभी अपने फ्रेंड कलीग रिलेटिव को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि कैसे उनको फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहिए और कैसे आप उनको हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग करने में? My answer to my investor family is that I have entered in new world of finance. So I will take out my family and my investor family out of debt first. We'll change traditional investment to smart investments. एक इमोशनल चीज बताऊंगा कि हम लोग चाइल्ड प्लान इंश्योरेंस होता है, चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी. So there is no such thing child insurance like thing. Ultimately that insurance, the parent is insured. So मैं उसका स्टडी किया कि बच्चों के नाम से ये लोग पॉलिसी जो बनाते हैं वो बच्चों का नहीं होता है, पेरेंट्स का ही होता है. तो पेरेंट्स का ले लो, और 18 साल का हमारा पैसा जो जाम होता है उससे अच्छा पेरेंट्स का ही डायरेक्ट इंश्योरेंस ले लो, उनका टर्म प्लान ले लो, इसमें उनका सेविंग होगा. तो ऐसे ट्रैप से हमको 1 by 1 स्टेप वाइज, और जैसा बैंक का EMI, इनसे बाहर निकलना है, डेट से निकलना है, और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट, क्योंकि हमारे पास कैश फ्लो होना चाहिए. जैसे पेंडेमिक में आ गया तो हमारे पास में होना चाहिए, कैश फ्लो होना चाहिए. या हमारे लोग जैसे वीकडे हॉलीडे, वीकेंड हॉलीडे होम्स खरीदते हैं या फार्म हाउस खरीदते हैं, तो वो कंसेप्ट तो मुझे लगता है इनको डेट ट्रैप में लेकर जाता है. तो उनसे भी इनको बाहर निकलना है.
and would suggest not to invest by taking loans. Will share benefits of debt-free life, will guide to generate positive cash flow, and will make them aware about real estate investments. So I thank you very much कि आप अभी just beginning की है, and 2 months में भी I am very happy that you have learned and implemented personal finance learning in your personal life and helping your friend, family, colleague. And जैसे जैसे आपकी लर्निंग आगे बढ़ेगी तो आप और हेल्प करेंगे. तो आई रिक्वेस्ट कि जब नरेंद्र जी आपको वीडियो शेयर करते हैं एज ए इन्वेस्टर, आपको फ्रेंड, फैमिली, कलीग, तो नरेंद्र जी को आप टाइम दीजिए. आप फिजिकली या डिजिटली नरेंद्र जी के साथ मीटिंग करिए. वो आपके पहले सबसे पहले आपके क्या शॉर्ट टर्म गोल है, मीडियम टर्म गोल क्या है, लॉन्ग टर्म गोल क्या है, उसके हिसाब से कितना इन्फ्लेशन एडजस्टेड कॉर्पस चाहिए, कितना पर मंथ आपको एक आपकी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आपको स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डेट या इक्विटी में करना होगा. ओके, और क्या सुटेबल प्रोडक्ट होगी. उसके अलावा कैसे आपको हर महीने एक 20-30% ऑफ आपकी इनकम को सेविंग करनी चाहिए आपके लाइफस्टाइल एक्सपेंस रिडक्शन करके. आपको डेट फ्रीडम कैसे प्लान और अचीव करना चाहिए, कंटीजेंसी प्लान के बारे में, टैक्स प्लानिंग के बारे में. तो सब कुछ जो है आपको एक अच्छी तरह से ओवर अ पीरियड टाइम. आई एम दिस इज द फर्स्ट डिजिटल मीटिंग वी आर डूइंग, सो विल बी डूइंग वंस इन अ 2 मंथ 3 मंथ. सो ओवर अ पीरियड टाइम जैसे जैसे नरेंद्र जी लर्न करते जाएंगे, ऐसे से आपके साथ वो सारी लर्निंग शेयर करेंगे और विद इन दिस 6 मंथ आपका एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान रेडी हो जाएगा. ओके, सो थैंक यू वेरी मच नरेंद्र जी. आप अपने कलीग जो है एक दूसरा आता है, आपके जो कलीग है आपकी एज में है 30, 40 या 50 में, उनको हो सकता है कि सेकंड करियर प्लानिंग के लिए सोच रहे होंगे, तो उनके लिए क्या मैसेज है, कैसे वो एक फाइनेंशियल प्लानर को एक सेकंड करियर दे सकते हैं? मैं उनको बताना चाहूंगा सर कि सिंपली आप किसी भी प्रोडक्ट के एजेंट ना बनो. अगर बनना है तो फाइनेंशियल प्लानर बनो, और सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर होना चाहिए विथ प्रॉपर कोच. मैं तो ये कहूंगा कि वो अगर सर्टिफाइड प्लानर फाइनेंशियल प्लानिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो वो केरशाह सर के साथ जुड़े, इस टीम के साथ, ब्लू ओशन टीम के साथ जुड़े और सीखे, और अपने साथ साथ सोसाइटी का डेवलपमेंट करे, सोसाइटी को हेल्प करे. क्योंकि हम लोग, मेरा खुद का फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं तो हम लोग हमारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सोसाइटी का, इनफैक्ट वी आर हेल्पिंग टू नेशन आल्सो. तो हम लोग ये कहेंगे, मैं ये कहूंगा मेरे दोस्तों से, मेरे रिलेटिव से, फ्रेंड से कि आप सर्टिफाइड प्लानिंग CFP कोर्स, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानिंग का कोर्स ज्वाइन कीजिए, और इसको अपने लाइफ टाइम में, अभी समय है तो फाइनेंशियल वर्ल्ड में अभी एंट्री कर लीजिए. अभी आप 35, 40, 20 इयर्स के भी होंगे तो भी आप कर सकते हैं. आप इनफैक्ट 12th स्टूडेंट जो अभी पास आउट हुए उनसे भी मैं ये कहूंगा कि ये कोर्स अभी आप कर लीजिए. आपका एक ब्राइट फ्यूचर है, ब्राइट करियर है, आप इसमें फ्यूचर करियर भी बना सकते हैं. मैंने देखा कि MBA और CA होने के बाद लोगों ने CFP कोर्स ज्वाइन किया है, तो मैं बहुत इम्प्रेस हो गया कि ये लोग CA और MBA होने के बाद इनको CFP की जरूरत पड़ रही. तो मैं 12वीं के 12th स्टूडेंट को अभी कहूंगा कि उन्होंने एज अ करियर इसको अडॉप्ट करना चाहिए. और जो सर्विस में मेरे जैसे लोग हैं, इन लोगों ने, या मेरे रिलेटिव्स, फ्रेंड सर्कल में जितने लोग हैं, उन्होंने ज्वाइन करना चाहिए और इस टीम का एक पार्ट बनना चाहिए. तो इसमें अपना भी प्लानिंग होगा, डेवलपमेंट होगा, और इसके साथ में हमारे समाज का भी डेवलपमेंट होगा. गुड. तो ये मैसेज देना चाहूंगा सर मैं. हाँ, बोलिए. हाँ, ये मैसेज देना चाहूंगा, वर्क ऑनेस्टली एंड ट्रांसपेरेंटली एंड नो स्पेकुलेशन इन दिस फील्ड लाइक एजेंट्स. जैसे मैंने मेरे मिस्टेक्स रेक्टिफाई किया, तो ये ज्वाइन करके आप लोग भी अपने मिस्टेक्स रेक्टिफाई कर सकते हैं. तो हमारे थिंकिंग का जो मैनर था, आई वॉज थिंकिंग इमोशनली, नाउ आई थिंक लॉजिकली. तो प्रॉपर प्लानिंग ऑफ फाइनेंस ऑफ क्लाइंट्स will keep you and them will keep them healthy and wealthy. So हम लोग एम्प्लॉय ओरिएंटेड, क्लाइंट ओरिएंटेड वर्क करते हैं, ट्रांसपेरेंट रहता है, ट्रांसपेरेंसी है इस वर्क में. CFP बनने के बाद में एक आदमी ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंसी के साथ में वर्क करता है.
तो एजेंट लाइक नहीं, वो सिर्फ मनी ओरिएंटेड वर्क करता है, हम लोग को मनी ओरिएंटेड वर्क नहीं करना है। किसका फ्यूचर प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग करके देना है, उसका 2 पैसा बचना चाहिए, तो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट, और रिटायरमेंट के बाद की भी जो लाइफ है उसकी हैप्पी होनी चाहिए। बहुत लोगों को यही नहीं पता होता कि हम लोग रिटायरमेंट के बाद करेंगे, रिटायरमेंट के बाद हमारी लाइफ कैसे होगी। इवन मुझे ये प्लानिंग नहीं था कि मैं कैसे करूंगा, इसलिए मुझे लगा कि फाइनेंशियल एजुकेशन लेना चाहिए, तो आई टर्न टुवर्ड्स CFP कोर्स। इसलिए मैं बोलूंगा सबको कि मैक्सिमम लोग अगर ज्वाइन करें तो एज सेकंड ऑप्शन, करियर ऑप्शन, वी कैन यूज दिस। और मेरा प्लान मैंने बताया सर, एक कंपनी जो मिसेज अभी कंपनी ओपन कर रही तो उसका फाइनेंशियल प्लानिंग, और जो चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है उसके थ्रू अप्लाई करके प्रोजेक्ट रिपोर्ट रेडी किया हूँ मिसेज के लिए। उनका जो प्रोजेक्ट था, उनका फाइनेंशियल प्लानिंग पूरा टेबल एनालिसिस करके, कितना लोन आएगा, क्या आएगा, कैसा आएगा, EMI कितना होगा, वो करके दिया हूँ सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो दैट इज फ्रॉम माय एंड। Good, very good. So I thank you once again for accepting my invitation to be a part of a digital meeting, and I am sure that ki interaction with you, so where you have shared your honest success story and your journey from, you can say, from college education to till date, and from you can say a successful professional to how you can become a successful financial planner. So it will give you a lot of inspiration other people to become either सक्सेसफुल इन्वेस्टर, वाइज एंड लॉजिकल इन्वेस्टर। और जो व्यक्ति टाइम दे सकते हैं तो वो आगे जाके अपना सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर कंप्लीट करके एक सेकंड करियर के लिए या पार्ट टाइम करियर के लिए भी वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिंक में नरेंद्र जी का मोबाइल नंबर मैं शेयर करूंगा, तो आप अपना एक कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लानिंग करवाना चाहते हैं तो नरेंद्र जी को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नरेंद्र जी जो है अभी जो भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करेंगे वो उनके मेंटर की सुपरविजन से करेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं उनके जो भी हैंडआउट्स होंगे वो हम चेक करके उनको फीडबैक देंगे। तो कहीं ना कहीं आपका प्लान जो बनाएगा वो नरेंद्र जी जो है फर्स्ट लेवल पर रहेंगे और वो प्लान को हम चेक करके आपको शेयर करेंगे। तो कहने का मतलब है कि इट इज प्रिपेयर्ड बाय द क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर ओनली। सेकेंडली, जो सेकेंड करियर या पार्ट टाइम के लिए या एक प्रोफेशनल करियर के लिए करना चाहते हैं तो वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नरेंद्र जी जो है आपके को-मेंटर बनेंगे एंड नरेंद्र जी और हमारी टीम मिलके आपको एक नेक्स्ट 12 to 15 मिनट में CFP कंप्लीट करने की हम गाइडेंस देंगे और आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच नरेंद्र जी फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विथ अस